Okay. Once again, good evening, all of you. So in this lecture, we are going to discuss the constructor. What is constructor? How constructor is different from function or methods? Very important question. How many types of constructor? Okay. I want to ask one thing. Okay. Who is Sujit? Okay, Sujit. How many types of constructor? In a class, how many constructors can be exist? What is the purpose of constructor? How constructor invoke or call? Understand? Okay. What is constructor? My first question is that what is constructor? Who will reply? Who will reply? What is constructor? What is constructor? Tell me, anyone. Sir, may I? So, constructor is a type of function having the same name as the class. It's a type of very good function having same name as the class name. Just for a short revision of 5 minutes. Having same name as the class name, it does not have any return type. It's my personal suggestion to all of you, just watch my previous video. If you are watching this video first time, it does not have any return type. How the constructor is different from the function or method? Constructor does not have any return type. Method always have the return type. Constructor does not have any return type, not even void. 1 second please. Not even void. कंस्ट्रक्टर का कभी भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, लेकिन मेथड का फंक्शन का हमेशा रिटर्न टाइप होता है. ऑलवेज हैव द रिटर्न टाइप. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. Second difference, constructor always having the same name as the class name. Sorry. Method or function may or may not have the same name as the class name. मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा, द कंस्ट्रक्टर ऑलवेज हैविंग द सेम नेम एज द क्लास नेम. दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस. थर्ड ओके, ये पॉइंट जो है वो जल्दी नहीं बताया जाता कॉलेजेस में कि क्या कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है. वी अंडरस्टैंड. क्या मेथड का नाम भी सेम हो सकता है? यस, इन जावा इट इज पॉसिबल. आई विल शो यू प्रैक्टिकली, डोंट वरी. ठीक है. थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्टर ऑलवेज इन्वोक्ड or call when the object is created.
जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर हमेशा ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, ऑलवेज इन्वोक्ड और कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। बट फंक्शन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन और मेथड्स नीड टू बी कॉल, हमेशा आपको कॉल करना ही पड़ेगा। जब तक आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे द फंक्शन विल नेवर कॉल। आप चाहें कि अपने आप से फंक्शन कॉल हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट कंस्ट्रक्टर के साथ ऐसा है कि कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है। These three are very important differences between the functions and the constructor. How many types of constructor? There are two types of constructor. Number one, non-parameterized. Number two, पैरामीटराइज। प्रोग्रामिंग की और प्रैक्टिकल की तो अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन थ्योरी की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। जब तक हमारे पास थ्योरी नहीं होगी हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? इन अ क्लास हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर कैन बी एग्जिस्ट? n नंबर। n number of constructor can be exist. What is the purpose of constructor? Constructor used to initialize the data members. ठीक है? How constructor invoke or call? When the object is created. For example, how object is created? For example, class name is college. अब हमें कॉलेज का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। कॉलेज, स्टूडेंट। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंप्लीट किया वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ओके, और इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। आई थिंक इन 5 मिनट और लेस देन 5 मिनट हमने सारे क्वेश्चन के आंसर कर लिए। नाउ यू आर इन पोजिशन टू डू समथिंग प्रैक्टिकल। आप अब करेंगे, ठीक है? अब तो हमें प्रैक्टिकल करना ही है, ठीक है? आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to the constructor. हाँ, एक चीज और है, maybe if you remember, constructor overloading. When more than one constructor exists in a class, that is called constructor overloading. ये वो टॉपिक है जिसके आने के चांसेस 100% है, और यहाँ तो 100% चांसेस हैं। पूरा फर्स्ट ईयर और पूरा सेकेंड ईयर इस टॉपिक पर बेस्ड है, तो ये आगे तलक आपको सपोर्ट करेगा। अंडरस्टैंड? चलो, वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल। ओके, अच्छा, अब एक चीज और बता दें बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रैक्टिकल। देखिए, एक सिचुएशन है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। ये हमारा एक रूम है, ओके, और इस रूम में स्टूडेंट्स आते हैं या कोई गेस्ट आता है, मान लीजिए, और यहां पर साइड में एक स्विच बोर्ड है, उसमें लाइट के स्विचेस लगे हुए हैं, और इस रूम में जनरली डार्कनेस रहती है। तो जब कोई आता है तो स्विच ऑन करता है तो लाइट ऑन हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आने वाला आदमी अगर स्ट्रेंजर है, उसे नहीं मालूम है कि स्विचेस का आइडिया क्या है, कहां पे स्विचेस लगे। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही कोई पर्सन मेरे रूम में इंटर हो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाए।
उसे करना ना पड़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैनुअली तो वो जाके ऑन कर सकता है, डेट्स, लेकिन हो सकता है कि उसको स्विचेस का आइडिया ना हो। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई पर्सन हमारे रूम में इंटर हो, सेंस करके, उसके स्टेप्स को सेंस करके हम इमीडिएटली लाइट को ऑन कर दें। तो जो काम ऑटोमेटिकली हो, इमीडिएटली हो, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पर्सन, दैट इज द कंस्ट्रक्टर वर्क। मैनुअली अगर कोई आदमी स्विच ऑन कर रहा है तो दैट्स नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ऑटोमेटिक अगर कोई काम हो जाए तो दैट इज अ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का काम ऑटोमेटिक होता है, जाकर उसको स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं। व्हेन द पर्सन विल इंटर, ऑटोमेटिकली द स्विचेस विल बी ऑन, क्योंकि स्विचेस ऑन करने का प्रोसीजर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख रखा है। अंडरस्टैंड? और जैसे ही पर्सन अंदर अराइव करेंगे, ऑटोमेटिकली माई कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक्ड, समथिंग लाइक दैट। ओके, करना ना पड़े, अपने आप हो जाए। अब आप पूरी तरह से अब आप प्रैक्टिकली करने के कंडीशन में हैं। सी, यहां पर हम लोगों ने कल एक प्रोग्राम लिया था लास्ट क्लास में। व्हाट आर द इंस्टेंस वेरिएबल? व्हेन वी डिफाइन एनी वेरिएबल outside all the functions but inside the class, that is called instance variable or a global variable. Understand? Global word तो ज्यादा यूज नहीं किया जाता, लेकिन instance variable और data member, now these three variables can be used or accessed in any function. Understand? Okay, let me clear all this, removing everything. It's a closing bracket of the class. Now int a comma b comma c. Now how many variables are there? There are three variables, and all these three variables are the instance variable or data member. बहुत ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है क्या लिख रहे हैं हम और कहां लिख रहे हैं। Okay, and c is equal to a plus b. Very good example to understand the constructor. Done. अब दो दिन की थ्योरी के बेसिस पे बताओ इस क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर हैं? हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर्स आर देयर? आराम से देख के बताओ, नीचे तलक, यहां तलक देख लो। हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर्स आर देयर? 3, 2, 1 या एक भी नहीं? 1. 2. So 1. So 1. 1. अच्छा, वो तो कुछ लोग 2 भी कह रहे हैं, उनको जरा हम पर्सनली मिलना चाहेंगे। हाँ भैया, तो टोटल हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर्स आर देयर? Sir, constructor is used to assign the value to the variable having same name and class name, has no return type. Very good मुस्तफा, मुस्तफा ने थ्योरी लिख के भेजी है, वेरी गुड। ठीक है, माधव सिंह, सर एक होगा। एक होगा नहीं, एक है। कैसे पहचाना? ये क्लास का नाम है, अगर इस नाम से मैच करता हुआ कोई फंक्शन डिफाइन है तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता। तो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। और साथ ही साथ सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं। इसका है देखो, तो ये तो कंस्ट्रक्टर कभी हो ही नहीं सकता, और इसका नाम भी क्लास के नाम से डिफर कर रहा है, डिफरेंट है। अब डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इज द अनदर नेम एंड माई क्लास नेम इज कंस्ट्रक्टर डेमो, सो इट कैन नॉट बी अ कंस्ट्रक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट द रिटर्न टाइप इज देयर एंड द कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। तो इस आधार पे सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर इसमें है। क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके। अब चाहे कंस्ट्रक्टर हो या फंक्शन हो,
ये तब तक कॉल नहीं होते जब तक मेन ना बने और ऑब्जेक्ट ना बने। तो हाउ टू क्रिएट द मेन? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। कोई भी टॉपिक आप ले लें, मेन की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। नाउ सबसे प्राइमरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट वर्क in the main to create the object. Without object, either the constructor will not call or the function will not call. So how to create the object? Constructor. My class name is constructor demo and obj is the name of object and constructor demo. अब देखो, आज इस लाइन के बारे में हम लोग प्रॉपर समझेंगे। What is the meaning of this? This is a class name. It is a reference variable. ये अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना है। जब तक इसको मेमोरी एलोकेट ना हो तब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इट जस्ट अ रेफरेंस वेरिएबल। obj is the reference variable. अब उसके बाद लिखा है न्यू। न्यू इज बेसिकली अ कीवर्ड यूज फॉर मेमोरी एलोकेशन। अंडरस्टैंड? अब ये क्या है? इतना ये क्या है? कोई बताएगा ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। यही लाइन है, यही पार्ट है लाइन का जो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना सर कैसे ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। इस पूरे पोर्शन को मैं कॉपी कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग, और यहां पर बराबर में इसके रख रहा हूं, यहां पर नीचे रख देता हूं, सॉरी। अब ध्यान से देखना, इस पार्ट को और इस पार्ट को देखो, बिल्कुल सेम लग रहा है कि नहीं? तो दैट मीन्स वो जो हम लिखते हैं न्यू के बाद उससे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। दैट इज कंस्ट्रक्टर कॉलिंग पार्ट, जो अभी तक हम लिखते चले आ रहे थे बट एग्जैक्टली उसका मीनिंग हमें नहीं पता था। आज हमको पता हुआ। देखो ये पार्ट देखो जो वहां से हमने कॉपी किया है, और ये पार्ट देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स यू आर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर आफ्टर द न्यू कीवर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Are you getting? Yes. Come on, reply everyone. Yes, sir. Confident Yes, reply sir. everyone. Yes, sir. Good. Yes. अब इसको यहां से हम हटा देते हैं। ओके, अब दूसरी चीज हमने ये बताया कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो आई वांट टू चेक वेदर इट इज कॉल्ड और नॉट। तो एक काम करते हैं, यहां पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। उसमें लिख दिया हमने, एलन के साथ लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड और कॉल्ड। अंडरस्टैंड? हमने ये लाइन लिख दी। अगर ये लाइन प्रिंट होती है तो इसका मतलब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, तभी तो ये लाइन प्रिंट होगी। तो लेट मी चेक, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और कोई काम नहीं किया। आई हैव ओनली क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट, और कोई काम अभी हमने नहीं किया है। सिर्फ हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या नहीं होता है, और ऑटोमेटिक कॉल होता है या नहीं। There is no error. Understand? There is no error. Now I just want to run this. Right click, wide main. Okay. Perfect. Perfect. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला फंक्शन क्यों नहीं कॉल हुआ और ये वाला फंक्शन क्यों नहीं कॉल हुआ अपने आप? क्यों नहीं कॉल हुआ?
सर क्योंकि वो मेथड है, हमने उसका इन्वोकिंग स्टेटमेंट नहीं लिखा। गुड गुड, यहां देखो, यहां देखो, अब हम एक एक लाइन प्रूफ कर रहे हैं प्रैक्टिकली. आई एम प्रूविंग द लाइन प्रैक्टिकली. जस्ट सी, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो और यहां पॉइंट नंबर 3 पढ़ो. आराम से जब पढ़ लेना दोनों पॉइंट्स, तब हम तुमको बताएंगे. और पढ़ लेना तो मुझे बता देना कि सर हमने पढ़ लिया है, और सब अंग्रेजी में बराबर लिखा हुआ है, आसान लैंग्वेज में. ठीक है, कोई दिक्कत तो फौरन बताओ. 3rd पॉइंट दोनों पढ़ो. बहुत इजी लैंग्वेज में हम नोट्स बना रहे हैं. पढ़ लिया, गुड. और अभी यस बिकॉज दे आर नॉट कॉल्ड इन मेन. यस मुस्तफा, गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड. ठीक है, अब पढ़ लिया सबने. श्लोक, आर यू देयर? आनंद, यस सर पढ़ लिया है सर, सिंपल लैंग्वेज में दिया सर, पढ़ लिया है. समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस यस सर, Okay. सिंपल लैंग्वेज में बहुत. गुड गुड, वेरी गुड. ठीक है, अब देखो यहां पर वो बुक, वो तुम लोगों ने वो फिल्म तो देखी होगी ना, 3 इडियट. ये बताओ कहां पर का डायलॉग है? कि बहुत सारी किताबें सर ऐसी भी तो हैं जिसमें इजी लैंग्वेज में दिया होता है कहीं पर ये फिल्म में डायलॉग? ये जरूरी नहीं है कि हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों को पढ़कर ही एक्सपर्ट बने. आसान और इजी लैंग्वेज ही पढ़ी जाती है. ओके, अब क्वेश्चन और सवाल ये आता है कि हाउ टू कॉल दिस फंक्शंस. इन्हें भी तो कॉल करना है बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग सम टास्क. तो अगर इनको कॉल करना है तो आपको कॉलिंग स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. कैसे? obj, this is your object and dot is a operator, dot operator. अब डॉट का मतलब है कि which function you want to call. आपने ऑब्जेक्ट तो ले लिया, ऑब्जेक्ट का सपोर्ट तो ले लिया. नाउ which function you want to call? I want to call serial wise process because if we call display that will be unnecessary, क्योंकि डिस्प्ले तो तभी होगा जब कुछ प्रोसेसिंग होगी. तो I want to call this function first. ओके, अब देखो, अगर हम कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा? नो सर. नहीं आएगा. अच्छा, आंसर बन गया है, प्रिपेयर्ड हो गया है. समथिंग इज प्रिपेयर्ड बट नॉट सर्व्ड. प्रिपेयर्ड हो गया है. प्रिपेयर्ड इसलिए हुआ है क्योंकि आपने प्रोसेस को कॉल कर लिया है, लेकिन डिस्प्ले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने डिस्प्ले को कॉल नहीं किया. तो नाउ द इंपॉर्टेंट डिश इज प्रिपेयर्ड इन द किचन बट स्टिल नॉट डिस्प्ले ऑन द डाइनिंग टेबल, क्योंकि आपने डिस्प्ले कॉल नहीं किया. नाउ अब आपकी डिश प्रिपेयर्ड होने के साथ साथ डिस्प्ले भी होगी. जस्ट 1 सेकेंड. एब्सोल्युटली करेक्ट. अंडरस्टैंड? यस सर. गुड. तो सबसे पहले ओके, अब देखो सबसे पहले क्या हुआ. देखो, अब जैसे ही आपने ये कंस्ट्रक्टर, ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी वजह से आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ. तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ वो देखते हैं. कंस्ट्रक्टर कॉल होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो कुछ लिखा है वो सब कुछ एग्जीक्यूट होगा. तो a की वैल्यू 10 हो जाएगी क्योंकि आप लिख रहे हैं, कर रहे हैं, वो होगा. और b की वैल्यू 20 हो जाएगी क्योंकि आप कर रहे हैं. और c की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यही 3 इनिशियलाइजेशन आप कंस्ट्रक्टर में कर रहे हैं. और साथ ही साथ ये लाइन भी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी जो हो रही है. नाउ द कंस्ट्रक्टर पार्ट इज ओवर. अब देखो
अब हम कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं? प्रोसेस कॉल कर रहे हैं। तो जब हम प्रोसेस कॉल करेंगे तो माई कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द प्रोसेस सेक्शन। अब जब प्रोसेस सेक्शन में हम जाएंगे तो जो उसमें हो रहा है ये आ गया प्रोसेस। वेट, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? c इज इक्वल टू a प्लस बी। कौन सा a और कौन सा b? यही वाला a और यही वाला b, जिसको आपने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज किया था, ये दोनों ऐड होकर c में 30 आ जाएगा। बट ये अभी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्ले कराने के लिए आपको ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो हाउ टू कॉल दिस फंक्शन? obj.display। तो जैसे ही आप डिस्प्ले कॉल करेंगे, योर कंट्रोल विल इमीडिएटली ट्रांसफर टू डिस्प्ले फंक्शन, और फिर यहां पर लिख कर आएगा टोटल c। व्हाट इज c? c इज 30। अंडरस्टैंड? तो ये आपका c क्या है, a क्या है, b क्या है? दे आर ग्लोबल और इंस्टेंस वेरिएबल। तो हर फंक्शन के अंदर आप इन्हें एक्सेस और अप्रोच कर सकते हैं, और आप कर रहे भी हैं। देखिए, a और b आपके बाहर डिफाइन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग abc इन कंस्ट्रक्टर, no problem, without any error, and the same abc we are using in process because they are global variable, and the same c is using in display. Now it's up to you. If you have any problem, please tell me. The constructor work is very specific. कंस्ट्रक्टर में क्या करना है ये सब क्वेश्चन में लिखा होता है, आपको कुछ भी सोचना नहीं, सामने लिखा होता है। आराम से देखिए और हमें बताइए कि क्या आपकी समझ में आ गया है। देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस टू मी। टेक योर ओन टाइम। आराम से देखिए और बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नीचे कर दें, दानिश करा नीचे करें। यस सर, अंडरस्टूड, गुड। श्लोक, आपका रिप्लाई नहीं आया? आनंद का नहीं आया? नो डाउट सर। नो डाउट सर। वेरी गुड। अच्छा, Yes. my question is that which type of constructor is present? See what I am writing. सर VDT तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल होती है सर, मेरे स्कूल में सर ने कहा था। हाँ हाँ, मैंने तो बनवाई है आपको, अभी लास्ट क्लास में तो आपको बनवाई थी मैंने VDT, सीरीज फॉर्मेशन की क्लास में बनवाई थी। सर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में भेजा तो हमें पहले समझ नहीं पाया, फिर से याद आया वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल। ठीक है, ये मैंने जो क्लास लिया था, फिर इसके पहली वाली जो आपने ली थी सर उसमें आपने बताया था। ये देखो। यस सर, यस सर। और देखो सामने लिखा भी है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल VDT, और हमने इस ग्रुप में भी VDT बनाकर भेजी थी। इस टाइम पर 3 क्लासेस चल रहे हैं हाई स्कूल के, सबसे आगे यही बैच है। विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज प्रेजेंट इन दिस क्लास? Sir, can you please scroll up? Which type of constructor is present in this class? Non-parameterized or parameterized? कौन सा कंस्ट्रक्टर इस क्लास में प्रेजेंट है? शबीब ने बहुत जल्दी आंसर दिया, सर नॉन पैरामीटराइज्ड।
देखो ये कंस्ट्रक्टर है, इस ब्रैकेट के अंदर चाहे वो कंस्ट्रक्टर का ब्रैकेट हो चाहे वो फंक्शन का ब्रैकेट हो, इफ दिस ब्रैकेट इज एम्प्टी, that means it's non parameterized. Understand? चाहे कंस्ट्रक्टर हो या फंक्शन हो, और अगर ब्रैकेट एम्प्टी है तो उसको कहा जाता है नॉन पैरामीटराइज्ड. आर यू ऑल गेटिंग? Yes, sir. ओके, अब बताओ ये फंक्शन कैसा है, पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज? Non-parameterized. So non-parameterized. गुड. ओके, अब ये बताओ कि ये फंक्शन कैसा है? Non-parameterized. So गुड non-parameterized. गुड माधव, माधव वेरी गुड. यू आर रिस्पॉन्डिंग इन एवरी बैच, वेरी गुड. Thank you, sir. Sir also non-para. Good, good, good. Non-para. ठीक. Now, एक रिस्क लेते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझाते हैं. बस अगर आपने ये समझ लिया, then you are expert पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ओके, बस ये वाला पॉइंट आपने समझ लिया, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, आप हर प्रोग्राम कर लेंगे. ओके, सी, when the constructor accept the parameter, that constructor is called parameterized constructor. Understand? जब कोई कंस्ट्रक्टर कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है तो उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है. ओके, देखते हैं. इससे पहले हम कॉपी करके आपके ग्रुप में भेज रहे हैं, इस पर निशान लगा देते हैं. आई एम जस्ट कॉपिंग. एंड सेंडिंग इन योर ग्रुप. देखो वो राज है, राज. अच्छा, नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, एक मिनट. सी, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूं. जब तक के आप इस एग्जाम्पल को एक बार रिकंसिडर कर लीजिए, और मीटिंग आपकी ओवर होने वाली है, तो मीटिंग अभी ओवर हो जाएगी, आपको रीज्वाइन करना है. बस 2 मिनट बचे हैं, 2-3 मिनट. ठीक है, मुझे 2-3 मिनट लगेंगे आने जाने में. अगर इस दौरान मीटिंग ओवर हो जाए तो आप लोग, यहां पर लिखा हुआ है, हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर, वो लाइन कहां गई यार? हाउ मेनी टाइप्स, नहीं, इन अ क्लास हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर कैन बी एग्जिस्ट? So n number of constructor can be exist in a class. Understand? एक क्लास में एक से ज्यादा अधिक कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, but only one. But there will be only one. Only one non-parameterized constructor. As per the rule of overloading, as per the rule of overloading. रूल ऑफ ओवरलोडिंग क्या था? याद करो, हम लोगों ने 3 रूल पढ़े थे. पहला रूल क्या था?
पैरामीटर के बेसिस पे हम डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या था? डेटा टाइप के बेसिस पर। parameter. पहला रूल था नंबर ऑफ पैरामीटर के बेसिस पे हम डिफरेंस कर सकते हैं। सेकंड इज डेटा टाइप के बेसिस पे कर सकते हैं। थर्ड क्या था? थर्ड क्या था? The sequence of data type of parameter. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी एक्चुअली थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। व्हाट इज एबीसी? Class. हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और यहां पर लिखा system.out.print, hey, I am the constructor. So which type of constructor is this? Non-parameterized. क्या हम दूसरा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? अगर हम बनाते हैं तो ये दोनों प्रोटोटाइप सेम हो जाएंगे और सेम प्रोटोटाइप पर ओवरलोडिंग नहीं होती। प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग? ये भी नॉन पैरामीटराइज, ये भी नॉन पैरामीटराइज, तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरलोडिंग का रूल है कि आपको पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे। तो अगर एक नॉन पैरामीटराइज आपने बनाया है तो दूसरा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से अगर आपने एक नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बनाया है तो दूसरा नॉन पैरामीटराइज फंक्शन उसी नाम से नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर सेम हो जाएंगे एंड सेम पैरामीटर पे ओवरलोडिंग नहीं होती। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं। तो चाहे कंस्ट्रक्टर हो चाहे फंक्शन हो, अगर नॉन पैरामीटराइज है ओवरलोडिंग के केस में तो वो एक ही होगा। हाँ, दूसरा अगर आपको बनाना है तो आप उसे पैरामीटराइज कर लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से मल्टीपल बना सकते हैं, बस पैरामीटर चेंज करते रहिए। ठीक है, दूसरा बनाइए, उसके अंदर 3 पैरामीटर ले लीजिए। लेकिन अगर आप चाहें कि इसको नॉन पैरामीटराइज बना दें तो ये आपका ये वाला फंक्शन इसके साथ क्लैश कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बना चुके हैं। तो यू कैन नॉट क्रिएट द सेम फंक्शन विद द सेम पैरामीटर। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ग्रेट। अब वापस आ जाते हैं, ठीक है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट डेमो लेक्चर। 1 मिनट बस, ये आपकी रिकॉर्डिंग सही कर लें। डेमो लेक्चर 1। ओके, कुछ लोग टाइप कर रहे थे जब मैं समझा रहा था, सर थोड़ा समझ आया। ओके, आ गया ना? बस ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, ये सब मैंने हटा दिया, मैं फ्रेश बनाने जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे बोर्ड के। बस जरा सा पूरा ध्यान स्क्रीन पर रहना चाहिए। ठीक है, अब इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि नाम ये बहुत बड़ा है यार। अब ये कैसा कंस्ट्रक्टर बन गया? Parameterized. Parameterized constructor. कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, क्योंकि अब ब्रैकेट एम्प्टी नहीं है। अब ब्रैकेट एम्प्टी नहीं है। अब मैंने तुमको बताई थी एक लाइन कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये देखो नीचे ही आ रही है, कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर। मतलब डेटा मेंबर को वैल्यू देने का काम कंस्ट्रक्टर करता है। तो ये जो 2 वैल्यूज होल्ड कर रहा है, ये इन 2 डेटा मेंबर के लिए है। तो a इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा और b इज इक्वल टू वाई, और c जो बचा
क्योंकि वो एक कैलकुलेटिंग वेरिएबल है तो उसको हम 0 कर लेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगी। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। C is equal to A plus B. This is a processing. बाकी दोनों सेम है, बस कंस्ट्रक्टर में चेंजेस थे। घबराओ नहीं, मैं पूरा समझाऊंगा। रिजल्ट, अच्छा, मैंने अभी कहा था कि जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। और यहां पर हमने एक चीज लिख दी, अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है। तो अब हम इसे कंपाइल करते हैं। लेट मी सी के कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा। कंपाइलिंग, आई एम डूइंग द कंपाइलेशन। नो, एरर आ गई। ये इतनी बड़ी जो एरर आ गई, इसके बारे में हम बताते हैं क्या है। इसके बारे में बताते हैं क्या है। आपका कंस्ट्रक्टर इस वक्त पैरामीटराइज्ड है, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इस तरह से कॉल नहीं होता है। देखो एरर कहां आई है, इस पोर्शन में आई है, क्योंकि ये पोर्शन आपका कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का है। कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज्ड एंड यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो जब कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड होता है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आपको यहां से उतने ही पैरामीटर पास करने होंगे जितने पैरामीटर ये कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट कर रहा है। तो हाउ मेनी पैरामीटर दिस कंस्ट्रक्टर एक्सेप्टिंग? 2 पैरामीटर एंड बोथ आर इंटीजर। तो जब तक आप 2 इंटीजर पैरामीटर यहां से पास नहीं करेंगे तब तक ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। तो when the constructor is parameterized, then at the time of creating the object you have to pass or supply the number of parameter. Understand? Now let me compile this code. There is no error. Clear? अब देखो, इस लाइन को अगर हम यहां रखकर कंपेयर करें, यहां रखकर, अब देखो क्या होगा। We are passing 2 parameters. The first parameter will be stored in X. then second parameter will be stored in Y. तो ये कंस्ट्रक्टर 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा था and we have passed the 2 parameter. Then this constructor will be called. 1 second. Do you understand this thing? अब हम इसको कंपाइल करके भी दिखाते हैं, अभी हम रन करके दिखाएंगे, पहले ये चीज समझ लो। अच्छा, अब रुको 1 मिनट, जहां प्रॉब्लम हो फौरन पूछना, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कंपाइल, 1 सेकेंड, लेट मी रन। हम लोग कर चुके हैं यार पैरामीटराइज्ड। देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अच्छा, क्या हम यहां से 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं? नहीं। No, sir. Why? Sir, because the constructor is expecting 2 parameters of Yes. integer type. This constructor is accepting 2 पैरामीटर। तो आपको उतने ही पैरामीटर पास करने होंगे जितने ये कंस्ट्रक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, तो वी कैन नॉट पास मोर देन 2 पैरामीटर।
अच्छा, एक से काम चलेगा? No, sir. No, sir. Why? Because two parameters. 2 means 2, not 3, not 1 और not 0. 0 मतलब अगर आप कोई पैरामीटर नहीं पास करते हैं तब भी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, बिकॉज देयर आर सम कंडीशंस, देयर आर सम प्रोटोकॉल्स. अच्छा, कोई बात नहीं, 2 ही पैरामीटर तो पास करना है. कैन वी पास फ्रैक्शनल वैल्यूज? No, sir. 2 पैरामीटर पास करना है एंड बोथ द पैरामीटर मस्ट बी इंटीजर. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड. अब देखो, अब देखो ये कंस्ट्रक्टर कर क्या रहा है. कॉल तो कर लिया. एक्स में क्या आया? एक्स में क्या आएगा? कोई बता सकता है एक्स में क्या आएगा? एक्स में हमारा पहला पैरामीटर आएगा यार. पहले इसको सही कर लेते हैं. पहला पैरामीटर कौन सा है? 20. सेकंड पैरामीटर 30. 30. 30. ओके. इसमें क्या आएगा? y में क्या आएगा? 30. अब x की वैल्यू किस में जा रही है? a में. C. a में x की वैल्यू a में जा रही है. X, Y. a में आ जाएगा 20. y की वैल्यू किस में जा रही है? B में. तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30. अब ये बताओ कि ये a और b क्या है? The instance variable. A and B are the data member, and the purpose of constructor is to initialize the values to the data member. तो कंस्ट्रक्टर अपना काम कर रहा है, वैल्यू को डेटा मेंबर में असाइन कर रहा है. यही काम होता है कंस्ट्रक्टर का. और C की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. A plus B. ठीक है. अब इतना काम हो गया, इतना काम हो गया. अब हम यहां क्या कर रहे हैं? What we are doing here, C is equal to A plus B. तो C is equal to A plus B मतलब 20 plus 30 will become 50. 50. 50. लेकिन ये डिस्प्ले तब तक नहीं होगा जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे जिसका नाम डिस्प्ले है. तो जब हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे, this 30 will be printed, that is this 50 will be printed. अब पहले ये देख लेते हैं, क्या आंसर आया? आंसर तो नहीं आ रहा यार. क्यों नहीं आ रहा? तो हम लोगों ने कॉल नहीं करवाया ना. गुड माधव, कॉल नहीं किया यार. ठीक है. ओबीजे कंस्ट्रक्टर थोड़ी है कि अपने आप कॉल हो जाए, फंक्शन है तो आपको कॉल करना ही पड़ेगा. अब रिजल्ट जरूर आएगा. सर, कैन वी मेक दिस प्रोग्राम जनरलाइज्ड? पहले तो बताओ कि किसी ने समझा जनरलाइज का मतलब क्या होता है? मतलब सर, आप जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो एक फिक्स वैल्यू पास कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराने के बाद पास करें. पहले तो ये बताओ कि इतनी बात समझ में आ गई. वो तो इनपुट पार्ट तो अभी हम हैंडल कर लेंगे. ये पहले बताओ, इतना समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? Yes, sir. अच्छा, इससे पहले मैं चाह रहा हूं कि एक बात और. सर, आपने x और y में वैल्यू स्टोर करी, फिर उसको a और b में स्टोर कर रहे हैं. सीधा यहां पर आप ये ना करके
सीधा ये भी तो कर सकते थे, c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये a और b में रखने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा हम x और y ऐड कर लेते। इज इट पॉसिबल? No, sir. Why it is not possible? अगर ये बात तुम्हारी So समझ में because आए, तो it will be a second. because x and y are local variables and they cannot be accessed in another function. Excellent, excellent. X and y are the local variable जिनका स्कोप सिर्फ इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सीमित है। इस कंस्ट्रक्टर के बाहर हम x और y को यूज नहीं कर सकते। We cannot use। आप चाहे तो कंपाइल करके देख लीजिए, यहां पर हमने इसको हाइड कर दिया, हमने यहाँ x और y लिख दिया, नहीं जानता x और y। ये क्या लिखा है? एक मिनट, इसको हटा देते हैं। अब देखो, वो नहीं जानता x और y को। कैन नॉट फाइंड द सिंबल x। x क्या है? x इज अ लोकल वेरिएबल, यहां डिफाइन है ना। कंस्ट्रक्टर के अंदर x और y यूज हो सकता है क्योंकि x और y इज द लोकल वेरिएबल ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर ओनली। x और y कंस्ट्रक्टर के बाहर यूज नहीं हो सकता। बहुत ही सेंसिटिव चीजें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। इट्स फाइन, अगर ऐसा कर सकते तो हम जरूर करते, ठीक है ना। इट्स फाइन। अब देखो, वी आर गोइंग टू मेक द जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन का मतलब है कि आई वांट टू इनपुट, टेकिंग द इनपुट फ्रॉम यूजर। आ गया हमारा दोस्त स्कैनर क्लास, system dot in. How many values we have to pass? 2 values, n1 comma n2। बहुत ध्यान से देखना। इंटर फर्स्ट नंबर। अब वो 2 वैल्यू ऐड होंगी जो आप यूजर से इनपुट कराएंगे, ओके। ये पहली वैल्यू हमने इनपुट कराई। Now I'm taking the second value and that will be stored in n2. Now, अब n1 में एक वैल्यू है और n2 में एक वैल्यू है। तो instead of passing this 20, 30, we have to pass what? What we have to pass? So n1 and n2. Great. n1 and n2, क्योंकि अब हमारे पास वैल्यू n1 और n2 में है और n1 और n2 में वो वैल्यू है जो यूजर इनपुट करा रहा है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, लेट मी कंपाइल। देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर। रिकॉर्डिंग इज ऑन, थैंक यू। आप लोग बता देते हैं, अदरवाइज मैं भूल जाता हूं रिकॉर्डिंग। ओके, नाउ अब इमीडिएटली कुछ एग्जीक्यूशन नहीं होगा, पहले आपसे पूछेगा इंटर फर्स्ट नंबर। नाउ वर्ड के कोई भी 2 नंबर हम दे सकते हैं जो हम चाहें। Now I've given the 100, I have given the 200, parameterized constructor is called and the result is 300 is coming। अब उन वैल्यूज पे कैलकुलेशन हो रहा है जो यूजर इनपुट कर रहा है। अगेन, वंस अगेन, ओके। हम देते हैं 800, देन 500। क्लियर? क्लियर? अब यस मैं आप लोगों से फिर एक बात कह रहा हूं, जहां आपकी मैं अपनी तरफ से जरा सा एक शॉर्ट ट्राई रन कर दूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए। तो n1 में हमने एक वैल्यू ली 2 और n2 में एक वैल्यू ली हमने यूजर से 4 एंड वी आर पासिंग n1 कॉमा n2। 2 वैल्यू हम पास कर रहे हैं यहां से। अब ये सबसे पहले दोनों कहां जाएंगी? ये डायरेक्ट डेटा मेंबर में नहीं जाती, पहले ये दोनों जाएंगी पैरामीटर्स में। अब देखो यहां से 2 वैल्यू जा रही n1 n2, कौन से पैरामीटर में जाएंगी? पहली वैल्यू जाएगी x में और दूसरी वैल्यू जाएगी y में। तो n1 जो है वो x में जा रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2
और n2 जो है वो y में जा रहा है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इन x और y से a और b में वैल्यू ट्रांसफर होगी और b में क्या आ जाएगा 4। क्योंकि हमें a और b को आगे यूज करना है अलग फंक्शन में, तो a और b में हमने वैल्यू को ट्रांसफर कर लिया। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वेरिएबल, इनको कहा जाता है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वेरिएबल। ओके, और x एंड y आर द लोकल वेरिएबल इन कंपैरिजन टू a b c, दे आर वीक वेरिएबल। तो वीक वेरिएबल से वैल्यू स्ट्रॉन्ग वेरिएबल में जल्दी ट्रांसफर कर देनी चाहिए। समथिंग इज लोकल एंड समथिंग इज ग्लोबल, तो एज द नेम सजेस्टेड समथिंग इज वीक, समथिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, अब ये वाला फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो c में आ जाएगा a प्लस बी, तो 2 प्लस 4 6। फिर जब हम नीचे आएंगे तो यही 6 आपका रिजल्ट में स्टोर हो। ग्रेट। नाउ प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो। आराम से देखो। देखो अभी एक चीज और बता दें, अगर हम लोग बात करें एक परसेंटेज की, तो नॉन पैरामीटराइज्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो नॉन पैरामीटराइज के चांसेस ज्यादा हैं, पैरामीटराइज के चांसेस कम है। कम का मतलब बहुत कम। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे ही आएंगे, और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे जो करना होगा वो आगे लिखा होगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हाई स्कूल के हिसाब से इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन पूछा बहुत कम गया है। मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स। फिर उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आई वॉन्ट टू क्लियर ऑल दिस ड्राइंग, जस्ट 1 सेकेंड। पेपर्स कहां तक हमने सेट कर रखे हैं? अभी 2020 का पेपर हमने अपलोड नहीं किया है, वो करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। आखिरी क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन ये होता है कंस्ट्रक्टर बेस्ड बोर्ड पेपर्स। अनसॉल्व ले लेते हैं, 2018 का पेपर चलिए लेते हैं, देखते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंस्ट्रक्टर मिले ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए ये था, ये वाला था आपका जिसमें डेटा मेंबर और फंक्शंस थे। अब रेलवे टिकट आपके क्लास का नाम है, ये 2019 का पेपर है। एक मिनट, 2018 का पेपर है आई थिंक। एक मिनट नीचे, 2018 का पेपर। तो 2018 के पेपर में कंस्ट्रक्टर नहीं पूछा गया। देखो जितने भी फंक्शन बने हैं उनमें कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसका नाम क्लास के नाम पर हो। नॉर्मल फंक्शंस हैं, कंस्ट्रक्टर नहीं। ओके, ये इंस्टांस वेरिएबल दिए हैं, इनको हमें यूज करना है। मैं सब करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन। अब देखो 2017 का पेपर ओपन कर रहे हैं, इसमें ये सब बोर्ड्स के ओरिजिनल पेपर्स हैं, आपको भेजे जाएंगे। अब यहां पर आओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्लास का नाम है, और इसमें भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। दो फंक्शंस हैं, एक्सेप्ट एंड कैलकुलेट, देयर इज नो कंस्ट्रक्टर, इसमें भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। क्लियर? अब ये था 2017 का पेपर। अब 2016 का पेपर देखो, मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंस्ट्रक्टर ना मिले, इसमें 100% होगा कंस्ट्रक्टर। देखो बुक फेयर, ये क्लास का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ क्लास, ध्यान से देखिए। और बुक फेयर इज द नेम ऑफ क्लास। और ये देखो
ये दिया हुआ है कंस्ट्रक्टर, और कौन सा कंस्ट्रक्टर है? नॉन पैरामीटराइज। अंडरस्टैंड? नॉन पैरामीटराइज। तो यानी कि अगर कंस्ट्रक्टर होगा तो नॉन पैरामीटराइज के चांसेस बहुत हाई हैं, पैरामीटराइज के चांसेस कम है। लेकिन हम आपको दोनों दिए हैं। बस एक लास्ट 2015 भी देख लेते हैं, इसके बाद गिव मी 1 मिनट। पार्किंग लॉट, इसमें भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। अंडरस्टैंड? ओके। लेकिन अगर आप 2014 में देखेंगे तो उसमें कंस्ट्रक्टर आपको मिलेगा। ये आई थिंक आपका जो पेपर है, बस 1 सेकेंड और, तो सेक्शन बी मूवी मैजिक, ये क्लास का नाम है और इसमें 100% कंस्ट्रक्टर है। दिस इज मूवी मैजिक। और देखिए कि दिस इज अ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज आल्सो द अनदर नेम ऑफ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को सेट करना बहुत इजी होता है, ठीक है? यू डोंट वरी अबाउट दैट। कंस्ट्रक्टर पार्ट आप कर लेंगे। मेन क्या है? मेन, जिसको मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करवाई थी, मेन था आपका फंक्शन। फंक्शंस पे आपको कमांड अगर है तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे और फंक्शन ओवरलोडिंग भी कर लेंगे। तो फंक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, सो अगेन आई एम जस्ट ओपनिंग। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस? टेल मी, शुड आई क्लोज द सेशन? Yes. एनी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। नो सर। माधव इज सेइंग एवरीथिंग इज क्लियर सर। ओके, बस ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का प्रोसीजर था और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का प्रोसीजर भी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट टाइम से वी आर डूइंग ओनली द प्रोग्राम्स। तो अगर आप मेरी बात माने